Recording in progress. To man running on a horizontal ground at a speed of 5 meters per second, the raindrop appears to be falling at an angle of 45 degrees. हमें given क्या है? Raindrop appears to be falling. Appears to be falling means this is the relative velocity. Velocity of rain with respect to man is at an angle of 45. If the raindrops are actually falling vertically downwards, actual velocity of raindrops is vertically downwards. So you have to find the velocity of raindrop relative to ground. की velocity of raindrops है क्या? हमें क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है, a man is running at a horizontal speed of 5 meters per second. Rain is actually falling downwards. This is the actual velocity of rain. ये निकालनी है हमने. The man is moving horizontally with 5 meters per second. Velocity of rain with respect to man. This is at an angle of 45 degrees. Minus Vm means this side. This is Vrm at an angle of 45 degrees. Velocity of man given है, tan beta given है, so we can say tan beta is Vm by Vr. Beta is 45. So you get Vm is equals to Vr. So if velocity of man is 5, velocity of rain is also 5. Clear है diagram सबको? समझ में आ रहा है कैसे किया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Next. A stone is thrown vertically upwards from the floor of a lift with 20 meters per second relative to the lift. Velocity is given relative to the lift, it's not relative to the ground. And time of flight is found to be 2 seconds. You have to find the magnitude and direction of acceleration of the lift. Lift is moving upwards. यहाँ से हमने body को throw किया with the speed of. This is velocity relative to the lift. So velocity of stone relative to the lift. Basically इसकी value दी है. Twenty meters per second upwards. ऊपर फेंके and it returns to the left in 2 seconds. Time कभी relative नहीं होता, so you can say time is 2 seconds. And acceleration of stone relative to lift. Let it be. Because the body returns to the lift. Lift से जो है वापस lift में आ गई, तो relative displacement is 0. So you can use the relation. Because body ऊपर जा रही है and acceleration downwards, and that's why it returns to the ground. So you can say 0 is equals to. So you get A is equals to
दिस इज रिलेटिव एक्सेलरेशन। कि टी की वैल्यू को 2 पुट कर दिया मैंने। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स है, लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो जी प्लस ए एल। तो ये जो वैल्यू है दिस इज ऑफ जी प्लस ए एल। जी then ए एल इज ऑल्सो। देखो सारे स्टेप आ रहे हैं समझ। कि हमने रिलेटिवली सॉल्व किया रिलेटिव टू लिफ्ट, बिकॉज बॉडी लिफ्ट के फ्लो से चली थी वापस लिफ्ट के फ्लो पे आ गई है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज 0। Given velocity of car with respect to range, it's Vc minus Vr is 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। और इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमने जो अपवर्ड लेना है देयर इज के कैप को अपवर्ड लेना है, तो वेलोसिटी इज अपवर्ड। Velocity of car with respect to rain is 10 meter per second upwards. Velocity of rain with respect to plane. Velocity of rain with respect to plane means velocity of rain minus velocity of plane. This is minus 40i minus 40j minus 30. And we have to find velocity of plane with respect to car. Means you have to find the value of Vp minus Vc. Vc minus Vr given है, Vr minus Vp given है। अगर हम ऐड कर दें दोनों इक्वेशंस तो minus Vr and plus Vr they will cancel out. We are left with adding these two equations Vc minus Vp. पर ऐड करोगे तो this would be minus 40i minus 40j minus 30k plus 10k. This is velocity of car with respect to plane. हमने निकालनी है plane with respect to car. So Vp minus Vc is minus of so plus 40i plus 40j plus 20k. क्लियर समझ आ रहा है? Yes, sir. क्या मैं जो भी आपको दिया ना उसको लिख लो, जैसे कार विद रिस्पेक्ट टू रेन तो वीसी माइनस वी आर, रेन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन तो वी आर माइनस वीपी, और कार विद रिस्पेक्ट टू प्लेन निकाल के प्लेन विद रिस्पेक्ट टू कार कैलकुलेट कर रही। ये हमने क्लास में भी किया था। An aeroplane is to go from straight line from A to B and back again. Aeroplane has to go from A to B and back again. And wind blows perpendicular with speed v. जो विंड की वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। When aeroplane has to move from A to B, तो उसको इस डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा। At some angle theta. अगर उसने A से B जाना है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए या वर्टिकल?
horizontal. horizontal, हॉरिजॉन्टल। तो इसके दो कंपोनेंट्स, इस डायरेक्शन में इट विल बी b sin theta and this will be b cos theta. Capital B. To move from A to B, you can say b sin theta should be equals to small v when velocity. और sin theta is, अगर हम इसको डायग्राम में शो करें sin theta को, ये कैपिटल V है, स्मॉल v, this would be, अब ये दोनों इक्वल, तो दैट मींस बॉडी विल मूव अलोंग AB. AB की डायरेक्शन में वेलोसिटी है v cos theta, अगर ये डिस्टेंस L है, तो टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम A to B will be L by V cos. equal, and cos theta की वैल्यू यहां से पुट कर दो, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. हमें टू एंड फ्रो जर्नी का बताना था, तो इसका डबल, we can say total time is क्लियर है मेथड. कल एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन किया था हमने, तो आप फॉर्मूला याद रख सकते थे कि अगर ए से बी जाना है, अगर इसके, ये तो एरोप्लेन और विंड है, लीवर बोट होती तो कैपिटल वी विल बी द वेलोसिटी ऑफ बोट एंड स्मॉल वी विल बी द वेलोसिटी ऑफ लीवर, और सेम फॉर्मूला आना था. समझ आ रहा है? कोई डाउट इसमें तो पूछो. ठीक है मेथड. सर सर, हाँ जी. सर राघव का कॉल आया, वो कह रहे राघव हैं का कि कॉल आया, वो कह रहे हैं क्या है? मीटिंग लॉक्ड है। मीटिंग लॉक्ड है, लॉक्ड है मीटिंग, देखता हूँ मैं. उसको बोल दो ऑन कर दी मैंने. ओके। नेक्स्ट इज, a swimmer crosses the river along the line making an angle of 45 degree with the direction of velocity. Velocity of river is 5 meter per second. Swimmer takes 12 seconds to cross the river of it 60 meter. Velocity of swimmer with respect to water will. ये सिंपल न्यूमेरिकल है, बिकॉज 45 डिग्री का एंगल तभी बनता है जब दोनों वेलोसिटीज इक्वल हो. तो अगर वेलोसिटी ऑफ स्विमर बतानी है, दैट विल आल्सो बी 5 मीटर पर सेकंड. अगर रिवर की 5 है तो उसकी भी 5 आएगी, बिकॉज परपेंडिकुलर बेस इक्वल होने चाहिए. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. Point P is moving with constant speed of 10 meter per second, such that velocity vector always maintains an angle of 60 degree with line OP as shown. Initial distance between O and P is 100. After what time P shall reach? हमें वेलोसिटी दिया इस डायरेक्शन में, तो इसके दो कंपोनेंट्स, एक इस डायरेक्शन में, एक इधर. This will be 10 sin 60, और जिस साइड एंगल है दैट शुड बी 10 cos 60. O से B जाने के लिए कौन सी वेलोसिटी चाहिए हमें, sin 60 और cos 60? Cos 60. cos 60. तो और ये डिस्टेंस दिया है P से O का, so we can say time taken to move from P to O, that is distance from P to O divided by velocity along P to O. Distance from P to O is 100, velocity is 10 cos 60. So time taken will be 20 seconds.
क्लियर है मैथड? Yes. Position vector of a particle is given by R is equals to हमने स्पीड बतानी है when velocity vector and acceleration vector are perpendicular. Velocity vector and acceleration vector are perpendicular means अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, वेलोसिटी निकालनी है तो हम एक बार ही डिफरेंशिएट करते हैं, एक्सेलरेशन निकालनी है तो दो बार ही करना पड़ेगा. तो वेलोसिटी इज dr by dt. इसकी डिफरेंशिएशन t minus 4 I cap plus 2d j cap. Acceleration would be and this comes out to be constant acceleration है. ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन है, टोटल एक्सेलरेशन है 2i plus 2j. 2i plus सर 2j कौन टोटल सी एक्सेलरेशन? टोटल ये टोटल. तो ये रेडियल कंपोनेंट निकाल सकते हो अगर मैं बोलूं रेडियल एक्सेलरेशन कितनी है. इनिशियली बता दो, चलो इनिशियली रेडियल एक्सेलरेशन कितनी है, कैसे निकालो? सर जरा इस पढ़ने दो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है। पढ़ लो. आपको क्वेश्चन की जगह मैंने क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, बोर्ड पे जो वैल्यूज लिखी है मैंने आपको v और a दे दिया. मैं बोल रहा हूँ t इज इक्वल टू 0 पे अगर रेडियल एक्सेलरेशन बतानी हो तो बता सकते हो कि t इज इक्वल टू 0 पे रेडियल एक्सेलरेशन होगी या नहीं होगी. अगर मेरे को t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियली तो सर जो y एक्सिस मतलब जो j कैप वाली वेलोसिटी एक्सेलरेशन है वही होगी. t इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है? -4 I कैप. -4 है. पहले ये बताओ इसका पाथ फॉलोड कौन सा होगा? पाथ फॉलोड का रूल क्या बताया था? काइनेमैटिक्स में रूल होता है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में कब मूव करती है अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कोलिनियर हो. वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कोलिनियर है because velocity is along minus x axis, acceleration is in xy plane. तो ये कोलिनियर नहीं है. कोलिनियर नहीं है मतलब पाथ फॉलोड स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्लियर है. अब सेकेंड चीज देखो, एक्सेलरेशन इज 2i plus 2j. 2i plus 2j कांस्टेंट वैल्यू है, वेरिएबल है? कांस्टेंट. कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो पाथ फॉलोड. अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कोलिनियर नहीं है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब फोर्स कांस्टेंट एक्ट कर रही है, और जब भी कांस्टेंट फोर्स एक्ट करेगी और वो वेलोसिटी के साथ कोलिनियर नहीं है तो पाथ फॉलोड पैराबोलिक ही होगा. पैराबोलिक और रेडियल एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे बदलती जाएगी बिकॉज कर्व्ड पाथ है. प्रोजेक्टाइल में जैसे हर जगह पे रेडियल एक्सेलरेशन सेम नहीं होती, इसमें भी हर जगह पे डिफरेंट रेडियल एक्सेलरेशन आ जाएगी. इनिशियली 2j कैप होगी बट बाद में वो चेंज होती जाएगी हर पॉइंट पे, टी के साथ वेरी कर रही है वेलोसिटी जो. अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा था? टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर. वेक्टर्स में हमने बताया था if a and b आर परपेंडिकुलर
then their dot product should be 0. Dot product should be 0 means ax bx plus ay dy should be 0. Ax कितना है? 2. bx is 2t minus 4. Ay is 2. Az is 2t. This gives us that 8t is equals to 8. T is 1. और t is equal to 1 second पे velocity कितनी है? -2 IQ plus 2 JK. So minus 2i and plus 2i. Minus 2i plus 2j. समझ में आया कैसे किया? आपको अगर मैं कोई भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे दूं तो आप रेडियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो कितनी होगी मैथ्स के यूज से? मतलब जैसे मैंने आपको दे दिया, मान लो ए की कुछ वैल्यू दे दी, मैंने कहा वेलोसिटी है 3i plus 7j, एक्सेलरेशन is ai plus 4j. If you have to find radial acceleration and tangential acceleration, वेक्टर्स में हम पढ़ते थे कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, तो सर फिर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए ना? मतलब मैंने तो ये दो वेक्टर्स दिया ना, डॉट प्रोडक्ट 0 तो तब होगा ना अगर ए और बी परपेंडिकुलर है. मैं आपसे कह रहा हूँ वेक्टर बताओ कितना है. ये तो टोटल एक्सेलरेशन दिया है मैंने, से कोई भी दो वेक्टर्स है, मान लो ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन. ये एंगल थीटा, दिस विल बी इसमें रेडियल एक्सेलरेशन कौन सी और टेंजेंशियल कौन सी है? A sin theta radial सर और A cos theta tangential. मेरे पास ये वैल्यू है 80 इज ए cos थीटा. ए cos थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी cos थीटा बाय बी. यस ए बी cos थीटा इज ए डॉट बी. यहाँ से ए डॉट बी निकल आएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी निकल आएगा. Yes sir. फिर टेंजेंशियल रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? ए आर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर. बिकॉज मेरे पास यही फॉर्मूला था ना, टोटल एक्सेलरेशन इज. तो अगर मेरे को टोटल भी पता है, एटी भी पता है, आई कैन फाइंड ए आर. सो कभी भी आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिए हैं तो आप वेक्टर्स का यूज करके टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन निकाल सकते हो. इट विल नॉट बी एन इशू. ये मैग्नीट्यूड है या वेक्टर फॉर्म है? एटी. Sir magnitude. तो अगर मैं बोलूं वेक्टर फॉर्म बताओ एटी की, ये किसके इक्वल होगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एटी की डायरेक्शन कौन सी है? सेम एज वेलोसिटी. तो यू कैन से इट्स a dot v by v. Unit vector can be written as this is the vector form of tangential acceleration. समझ में आ रहा है? Yes sir. यहां तक समझ में आया 80.
बिकॉज वेक्टर फॉर्म लिखने हैं तो सिर्फ यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर आपको एक एक्सेलरेशन पता है तो आप दूसरे निकाल सकते थे। There is find the time an aeroplane having velocity v takes to fly around a square with a side A if wind is blowing with velocity u along the side of the square. Almost similar question जो अभी किया है। हमारे पास ये स्क्वायर इसकी साइड है और मान लो विंड ऐसे ब्लो कर रही है, एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी है v, ए से बी जाने का टाइम कितना होगा? ए से बी डिस्टेंस इज ए, एयरक्राफ्ट भी इधर जा रहा है, विंड भी इधर जा रही है, तो टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई? V plus U. बी से सी जाने का टाइम, बी से सी या डी से A? ये भी ड्राइव किया पीछे क्वेश्चन में। ए अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और सी से डी जाने का टाइम सेम होगा। बिकॉज एरोप्लेन ए से बी जा रहा है तो विंड और एरोप्लेन सेम डायरेक्शन में है। सी से डी आएगा तो एरोप्लेन विंड के ऑपोजिट जा रहा है, तो नेट वेलोसिटी विल बी v माइनस यू। टोटल टाइम बताना है तो यू कैन से टोटल टाइम इज क्लियर है मैथड? तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप लिख सकते थे। कौन सा फॉर्मूला डायमेंशनली गलत है? सर जो आपने ए वाला जो रूट में लिखा उसको एक बारी पिछली स्लाइड पे दिखा सकते हो हमने कैसे किया है? ये डायमेंशनली गलत क्यों है? डायमेंशनली गलत कौन बोल रहा था ये फॉर्मूला डायमेंशनली गलत है? वो देख लेना पीछे की स्लाइड बाद में हो, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। इसमें देखो कौन सी गलती लग रही है। मीन्स किसी ने लिखा था, मैंने नाम नहीं पढ़ा, किसको ये डायमेंशनली गलत लग रहा था। अनन्या, डायमेंशनली गलत कैसे अनन्या? कौन सा इनमें से कौन सा डायमेंशनली गलत लग रहा है? ये सब सही है। ये भी डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी है, ये भी डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी है, ये भी डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी, एंड डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी इज टाइम, सो डायमेंशनली सब ठीक है ये। Two cars A and B are moving west to east, south to north, respectively along crossroads. A moves with a speed of 72 kilometer per hour. Crossroads पे move कर रहे हैं। मुझे आप this one. एक कार इस रोड पे ट्रैवल कर रही है, एक कार इस रोड पर ट्रैवल, हमें दिया ए यहाँ पे है और इसकी वेलोसिटी दी है 20 मीटर पर सेकेंड और ये डिस्टेंस दिया है 500। बी जो है इधर है, ये ट्रैवल कर रही है 54 से, दैट मीन्स और ये डिस्टेंस है 400। हमने बताना है इनमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। वी ए दिया था 72 किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 और डायरेक्शन है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस 20 वी बी इज गिवन
15 j cap. Velocity of A with respect to V. (20I minus 15J). Position vector of A with respect to B. Minus 500I plus 400J. RAB is this vector. The position vector of A with respect to B. Minimum distance. Formula क्या था? तो आपने ट्रिक्स ही बताई थी ना। VAB cross RAB. So VAB cross RAB. मतलब 8000 minus 7500. And magnitude of velocity is 25. So shortest distance is 20 meter. फिर हम इसे बी रिस्पेक्ट टू ए भी देख सकते हैं। B with respect to A देखोगे तो इसको भी फिर VB minus VA करना. So मतलब यहाँ तो A with respect to B लो इन दोनों को. मैंने दोनों को A with respect to B लिया. यहाँ दोनों को B with respect to A भी ले सकते हो. तो सिर्फ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सर इसको नॉर्मली कैसे सॉल्व करना था? नॉर्मली तो रिलेटिव वेलोसिटी से करना था ना. उस मैथड से खुद करके देखना. रिलेटिव वेलोसिटी निकाल के फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला. ओके सर। A particle is moving in a circular path of radius r with speed u when it begins to speed up at a constant rate. After that, when it completes 1/4 revolution, पार्टिकल किसी इंस्टेंट पे ए पे है और इसकी स्पीड है e. आफ्टर कंप्लीटिंग 1/4 रेवोल्यूशन तब बी पे आ गया और इसकी स्पीड है बी. हमें दिया चेंज इन इट्स वेलोसिटी वेक्टर कि ए से बी जाने में जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 2u है. Change in velocity vector means mod of v minus u. Vector is a fraction का formula. u में और v में एंगल कितना है? u is horizontal, v is vertical. So angle between u and v is 90. That is theta is 90. और v minus u का जो मैग्नीट्यूड है that is given in question as 2u. तुम्हें बस ये इक्वेशन मिली. इतना 4u square तो रेडियल एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी? थ्री यू स्क्वायर का. देखो आया समझ कैसे किया? सर फिर से बता दो एक बार। हमें दिया था यहाँ पे वेलोसिटी u है 1/4 सर्कल के बाद इट्स v और v माइनस u का मैग्नीट्यूड दिया है 2v. तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लगा दिया. v और u परपेंडिकुलर है. थीटा इज 90 तो ये क्या बन जाएगा? cos 90 इज 0. तो मतलब v माइनस u इज v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर.
और v माइनस यू की वैल्यू क्वेश्चन ने गिवन थी 2u, तो वहां से v आ जाएगा। तो हमें बताना है यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन कितनी है, तो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r। तो v स्क्वायर निकाल के v²/r की वैल्यू निकाल। क्लियर है? सर सर्कुलर पाथ की कंडीशंस क्या थी? वो वाली क्लास लगाई है, देखो फिर भी नहीं पता। सर्कुलर पाथ की कंडीशन क्या होती है? बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है whenever there is one component of acceleration which is always perpendicular to the velocity. रेडियल एक्सेलरेशन होगी तो सर्कुलर पाथ होगा। यस सर। A particle moves in a circle of radius 20 centimeter. Linear speed is v is equals to 2t. स्पीड टाइम के साथ वेरी कर रही है। मीन्स नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, प्लस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी। किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कांस्टेंट है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो टाइम पे डिपेंड करेगी, हमें t इक्वल्स टू 3 सेकंड्स पे बतानी है। t इक्वल्स टू 3 सेकंड पे वेलोसिटी इज and radial acceleration is v square by r. That means 36 by radius is 20 centimeter. Total acceleration कितनी होगी? Tangential is 2, radial is 180. Total is ar square plus ad square. तो ऑलमोस्ट 180 आ जाएगी, बिकॉज 180 का स्क्वायर प्लस 4, तो इट विल बी ऑलमोस्ट 180 आ। क्लियर है? यस। A particle moves on a circular path of radius 8 meter. Distance traveled by the particle in time t is given by हमने बताना स्पीड व्हेन टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सेलरेशन आर इक्वल। तो स्पीड कितनी हो जाएगी? टी क्यूब का डिफरेंशिएशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। हमने स्पीड बतानी है व्हेन रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर इक्वल। रेडियल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय r, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इस केस में 4t। v की वैल्यू पुट कर दो, रेडियस इज 8 मीटर, so you get 44 that t cube is equals to 8 and t is equals to 2। अगर t की वैल्यू 2 है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बिकॉज हमें स्पीड बतानी है व्हेन टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन आर इक्वल, तो स्पीड इज 8 मीटर पर सेकेंड। देखो समझ आया क्या किया? यस।
A swimmer swims in still water at a speed of 5 km per hour. He enters a 200-meter wide river, which is flowing at 4 km per hour, and proceeds to swim at an angle of 127 degree with river flow. Another point B is located directly across A. Swimmer lands on the other bank at C, from which he walks the distance CB with a speed 3 km per hour. So total time in which he reaches from A to B. थोड़ा lengthy question है. Statement. ध्यान से जो हमें दिया वो पढ़ लो. हमें ऐसे ही गिवन है. You have 200-meter wide river which is flowing at 4 km per hour. A man can move at an angle of 127 degree with a speed of 5 km per hour. At an angle of 127 degree. This angle is 37. We have 5 cos 37. इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है 5 sin 37 या 4 37 is 3 by 5 इसकी नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है और किस डायरेक्शन में है अगर मैं पूछूं नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर दिस इज माइनस EBR sin 37 यही आ रहा है आंसर इस डायरेक्शन में 4 है इधर 3 है तो नेट इज 1 रिवर की डायरेक्शन में उसके कारण ये पार्टिकल जो है ये मैन जो है ये इधर पहुंचा जितने टाइम में उसने रिवर क्रॉस की वो बी पे पहुंचने की जगह सी पहुंच गया फिर कहा सी से भी वो चल के आया विद स्पीड ऑफ 3 km पर आवर तो उसको ए से बी जाने में टाइम कितना लगा मतलब बेसिकली ए से बी जाने का टाइम पहले ए से सी का फिर सी से बी का तो रिवर क्रॉस करने में टाइम कितना लगता है सर बी ऑप्शन है मैं ऑप्शन नहीं पूछी तू क्लास 1 लगा चुका है रिवर क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा फॉर्मूला बोलो सर मैंने लीव कर दी थी 100 फॉर्मूला 5 cos 37. 5 cos 37 किलोमीटर में लेना है तो इसको 0.2 ले लो सर आपने भी क्या पूछा था 1/20 आवर्स टाइम कितना लगेगा फॉर्मूला सो 1/20 आवर मींस 3 मिनट्स फिर बी से सी का टाइम बी से सी डिस्टेंस कितना है वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम मतलब 1 into 1/20 तो डिस्टेंस BC इज 1/20 किलोमीटर BC सी से भी आने में टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 1/60 आवर और 1 मिनट तो 1 मिनट ये टाइम 3 मिनट्स ये टोटल टाइम विल बी 4 मिनट्स 3 minutes is the time taken to move from A to C 1 minute is time taken to move from C to B सर हमने BC कैसे निकाला BC हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है 1 और टाइम कितना लगा था 1/20 आवर्स यहां से यहां जाने में
तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, बिकॉज एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम करके हमने निकाल ली वैल्यू। बट सर फिर हम इसमें जो मैन की वॉकिंग वाली स्पीड है वो नहीं लेंगे? यहां से इधर तक तो अभी स्विम करके गया, सी से भी चल के आया, सी से भी तो हमने मैन की स्पीड ही ली है। सर ओके हॉरिजॉन्टल 3 किलोमीटर है ना वॉक करके? 3 किलोमीटर मतलब 1/20 किलोमीटर है ना, ये डिस्टेंस 1/20 किलोमीटर है और स्पीड 3 है, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो पहले हमने ये डिस्टेंस निकाला है कि बीसी डिस्टेंस कितना है, ये वाला स्टेप यस देख लो आराम से, आ गया समझ। यस सर। A boat having speed of 5 kilometer per hour in still water crosses a river of its 1 kilometer along shortest possible path in 15 minutes. सर जो पीछे वो जो उसने रिवर में कर्व वाला पाथ फॉलो किया है उसका हम वो बता सकते हैं कि कितना वो कर्व का वो है ये डिस्टेंस मीटर? यस सर। ये नहीं निकाल सकते अभी आप, मतलब निकल आता है, आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो स्मॉल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर ये भी लेना पड़ेगा कि रिवर की वेलोसिटी वेरिएबल होती है। ओके सर। A boat having speed of 5 kilometer per hour in still water and river of its 1 kilometer. हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होता है अगर वो डायरेक्ट ऑपोजिट जाए, दिस इज शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। और इसमें टाइम कितना लगता है, तो हमें इसमें सब वैल्यूज नहीं है, टाइम दिया है 15 मिनट्स, 15 मिनट्स इज 1/4 आवर, डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर, बोट हैविंग a speed of 5, so 5 square minus v square, तो फॉर्मूला याद है तो आराम से हो जाना चाहिए। So v is 3 किलोमीटर पर आवर, तो क्लियर है, बिकॉज हमें बोट की स्पीड भी दी थी, टाइम भी दिया था, सिर्फ रिवर की स्पीड बतानी थी। A particle starts from rest simultaneously from same point and move along two straight lines, one with uniform velocity, the other with uniform acceleration. इधर वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, बताने इनकी रिलेटिव स्पीड मिनिमम कब होगी, if alpha is the angle between lines of motion of two particles, then least value of relative velocity. इसको मैं अगर a मानूं और इसको b, इसकी वेलोसिटी आफ्टर टाइम t कितनी हो जाएगी, 80, 80 के दो कंपोनेंट्स, दिस विल बी 80 cos alpha, so we can say VA is VI cap, velocity of second body is relative velocity कितनी हो जाएगी, VA V means VA minus VB,
रिलेटिव वेलोसिटी मिनिमम कब होगी? जब इसके डिफरेंशिएशन 0 होगी। तो यहाँ से t निकल आएगा, t की वैल्यू वापस इधर सब्स्टिट्यूट करें। समझ में आया? Flag is mounted on car moving north with a velocity of 20 km per hour. Strong winds are blowing due east. कार नॉर्थ में मूव कर रही है। विंड ऐसे फ्लो कर रही है। और कार की स्पीड के साथ। तो फ्लैग किस डायरेक्शन में फ्लटर करता है? Flag flutters in the direction of velocity of wind relative to car. मतलब velocity of wind minus velocity of car. VC अगर इधर है minus VC will be this. और ये कौन सी डायरेक्शन बनेगी? साउथ ईस्ट। बिकॉज विंड हमेशा फ्लैग हमेशा फ्लटर करेगा जिस डायरेक्शन में विंड है, हवा जिधर चलेगी उधर ही जाएगा वो। तो कार के हिसाब से विंड इज ब्लोइंग साउथ ईस्ट, सो फ्लैग विल ऑल्सो फ्लटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। आ रहा है समझ? ये क्वेश्चन सुबह भी होमवर्क के लिए दे रहे, इसको करके देखना। A glass windscreen whose inclination with a vertical can be changed is mounted on a car. Car is moving horizontally. With 2 meters per second. And rain is falling vertically downwards with 6 meters per second. So velocity of rain relative to car. कार को लगेगा कि rain is in this direction. VR minus VC. This is direction of velocity of car relative to rain. Sorry, rain relative to car. हमें दिया ये वेलोसिटी विंड स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, मतलब विंड स्क्रीन ऐसे है, this angle is 90. ये एंगल बीटा, तो ये भी बीटा, तो विंड स्क्रीन का एंगल कितना हो गया वर्टिकल के साथ? 90 माइनस बीटा बताना है कितना है। टैन बीटा की वैल्यू, टैन बीटा इज VC अपॉन VR, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो 90 माइनस बीटा वुड बी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? टैन थीटा ना 3, बिकॉज अगर 9 टैन बीटा की वैल्यू 1/3 है तो 90 माइनस बीटा की 3 होगी। 6 क्वेश्चंस करके देखना, अभी यही कराए थे सुबह भी। एंड बाकी आपने पहले नोट्स पढ़ना, उसके बाद असाइनमेंट शुरू करना, और पहले PYQ करके फिर असाइनमेंट, पहले सीधा असाइनमेंट मत शुरू करना।